گنبد خضرا دیکھوں کہ پتی پتی درود پڑتی ہے. سبحان اللہ. کوئی وہ علماء کرام یا شعراء الزام جب آتے ہیں نا مائک پر تو ہم تمامی سامعین سے کہتے ہیں درود پاک پڑھ لیں. بار بار درود پاک پڑھانے کے لیے جو کہا جاتا ہے، درود پاک کون پڑھتا ہے؟ صرف انسان نہیں پڑھتے. ملاحظہ فرمائیں کہ پتی پتی درود پڑتی ہے، ارے اڑتی تتلی درود پڑتی ہے. پتی پتی درود پڑتی ہے، ارے ان پہ تتلی درود پڑتی ہے. ارے ان کی عظمت کو کوئی کیا جانے، ان کی عظمت کو کوئی کیا جانے. ارے ان پہ مچھلی درود، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان پہ مچھلی درود پڑتی ہے. اور ہر نظر احترام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے. اور جو نبی پر درود پڑھتے ہیں، ارے ان کو دنیا سلام کرتی ہے، ان کو دنیا سلام کرتی ہے. اور پڑھو، ایک شعر پڑھوں، عقیدے کا ایک شعر ملاحظہ فرما لیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ حضرات اپنے ماں باپ کی عمر دراز کے لیے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کی مغفرت کے لیے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کا ورد کریں گے. انشاءاللہ مسجد کے بولیں گے سبحان اللہ. کہ چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا، کہ چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا. ارے رشتہ کیسا ہو ٹوٹنے دینا. ارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اپنی ماں کو نہ روٹنے دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا کہنے کہ اپنی ماں کو نہ بولے سبحان اللہ، اپنی ماں کو نہ روٹنے دینا. حضرات محترم، انشاءاللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، یہ جو لمحات ہیں ہمارے آپ کے جو گزر رہے ہیں، اگر اس میں کا ایک لمحہ بھی رب قبیر نے قبول فرما لیا تو انشاءاللہ ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جب بھی ذکر سرکار سجاتے ہیں تو سرکار مدینے سے اسے ملاحظہ فرماتے ہیں. اور جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے. محمد رسول اللہ کی یہ پاک محفل ہے. میرے نبی کے ذکر مبارکہ میں تشریف فرما. میں تمام ہی حضرات کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی ایسے انسان کی محفل میں نہیں ہے جو کبھی بھول جاتا ہے، بلکہ میرا نبی تو وہ ہے کہ خود نے صفحے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقاب تیری دہائی. کیا کہنے حضرت، واہ واہ سبحان اللہ. ہم اس کے ذکر کی محفل میں بیٹھے انشاءاللہ. اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو تھوڑی دیر بات چیت ہوگی. آپ مجھ سے مخاطب ہیں نا؟ ہاں، آپ ادھر دیکھیں، بچے ہیں یہ جو جس کا کام ہے وہ کرنے دیں. بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ ان بچوں کی عمر میں جو ہے برکت عطا فرمائے. کیونکہ یہ بچے نہیں ہوتے ہیں، ان بچوں کے لیے تو انسان دیس پردیس کرتا ہے، ان بچوں کے لیے تو انسان پریشان ہوتا ہے. لیکن سنو، بچے اللہ کی رحمت ہیں. اگر بیٹا وفادار ہے تو اللہ کی رحمت ہے، بیٹی باحیا ہے تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. بچے سنیے محترم، باپ کبھی مرتا نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگ تشریف فرمائے، باپ کبھی مرتا نہیں ہے، بلکہ باپ
अपने लहू को बदल कर बेटों की नस्लों में चला करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। बाप दुनिया से चला जाए और बच्चे अगर इलाके से निकलते हैं तो लोग ये नहीं कहते ये फलां जा रहा है, बल्कि बुजुर्ग ये कहते हैं ये फलां का बेटा जा रहा है। पता ये चला जब जब हमारे वालिदैन का जिक्र होगा हमारे नाम के साथ उनका कल भी चर्चा होगा इंशाअल्लाह क़यामत तक उनका चर्चा होगा। बेशक अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, हमारे वालिदैन का हम पर एहसान है। आज 80% मुस्लिम नौजवान ऐसा है जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता। मैं बिल्कुल ये बात चैलेंज से कह रहा हूं। देखिए मोहतरम, दो चीजें हैं, एक हुकूकुल्लाह, दूसरा हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह वो चीज है जो अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की बंदगी जो बंदों के ऊपर है वो हर हाल में फर्ज है जो हर किसी को करना है, और एक है हुकूकुल इबाद। मैं इंशाअल्लाह आज हुकूकुल इबाद के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। हुकूकुल इबाद यानी बंदों का जो बंदों के ऊपर हक है, एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर जो हक है उसकी तरफ थोड़ी रोशनी डालूंगा। बैठेंगे इंशाअल्लाह, दिल की खिड़कियों को खोलकर बैठेंगे। एक भी लफ्ज ने अगर आपके दिल में घर कर दिया, हम में से किसी एक इंसान ने भी अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह यही अमल उसका हमारी बख्शिश का एक जरिया बन सकता है। हुकूकुल इबाद, एक बंदे का दूसरे बंदे पर जो हक है, एक इंसान का दूसरे इंसान पर जो हक है। हमारा मामला ये है कि आज अगर कोई हमारा भाई परेशान है तो हम ये समझ कर आगे निकल जाते हैं ये उसकी परेशानी है, वो जाने हमसे क्या मतलब, ये उसकी परेशानी है, ये वो जाने हमसे क्या मतलब है। हम अपनी बस्ती से या अपने इलाके से जब भी निकलते हैं, कोई बंदा परेशान होता है, मुसीबत में गिरफ्तार होता है, हम ये समझकर उस बात को छोड़ देते हैं, ध्यान तक नहीं देते, वो जाने उसका काम जाने हमसे क्या मतलब। ऐ लोगों, अल्लाह ने अगर आपको बेहतर बनाया है, मेरे मालिक ने अशरफुल मखलूकात बनाया, इससे बेहतर और क्या बनाता है। अल्लाह ने अगर आपकी समातों को बाकी रखा है, अल्लाह ने अगर हमारे हाथ और पैर में जोर रखा है, अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो मोहतरम किसी को भी ऐसे हाल में छोड़कर जाना ये बुरी बात है। हमें एक इंसान होने के नाते से दूसरे इंसान की मुसीबत में खड़े हो जाना ये सबसे पहला फर्क। सुने, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम अपनी तमाम तरह की कामयाबियों के चक्कर में, कोई परेशान हाल हमारी बस्ती में है, हमारे पड़ोस में है, हमारी रिश्तेदारी में है, हमारे परिवार में है, ये समझकर हम उसे छोड़ देते हैं कि ये वो जाने, उसका काम जाने। हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं, आगे बढ़ के कह लूं, इंसान मदद करने के बजाय, जानते, अगर हम में से कोई मुसीबत में पड़ जाता है तो उस समय हमारी कमियां देखी जाती है। नहीं, नेता भी बहुत बन रहे थे, ठीक है, ये इनके ऊपर मुसीबत पड़ी। बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं, बताओ लोगों की सोच ऐसी हो गई नहीं हो गई कि ठीक हुआ, ये बहुत चले फिरे बनते थे ना, बहुत ये बनते थे, बहुत वो बनते थे, इनके अंदर ये कमी थी इसलिए ये मुसीबत में पड़ गए। मोहतरम, हम बंदे हैं, ये तो फैसला करना मेरे रब का काम है, कौन बुरा है कौन अच्छा है। हम ये सोच कर उसकी मुसीबत में नहीं खड़े होते कि वो जाने उसका काम जाने। ऐ लोगों, जिस मुस्तफा की महफिल में बैठे हैं, आओ मेरे नबी का किरदार देखो, आओ मेरे नबी का इखलाक देखो। मक्का शरीफ की सरजमीन है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गली से गुजर हुआ, सरकार के कानों में किसी के बिलकने की आवाज आई, सरकार के कानों में किसी के रोने की आवाज आई, किसी के सिसकने की आवाज आई। मेरे सरकार ने जब अपना कान मुबारक उस आवाज की तरफ दिया, पता चला सामने मकान है, उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला है, उसके अंदर से कोई रोने वाला रो रहा है, उसके अंदर से रोने की आवाज आ रही है, उसके अंदर से बिलकने की आवाज आ रही है। मेरे सरकार करीब गए, दौड़ कर गए, मेरे सरकार दौड़ कर गए। सुनो, जिसके लिए कमली वाला दौड़े, जिसके लिए मोहम्मद अरबी दौड़े, सोचो वो इंसान कितना खुश नसीब होगा, सोचो वो इंसान कितने मर्तबे वाला होगा। अगर हम बुलाए गांव का प्रधान आ जाए तो हम फख्र करते हैं, हम बुलाए इलाके का विधायक आ जाए तो हम फख्र करते हैं। ए लोगों सुनो, रोने वाला काला बिलाल है,
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरे सरकार ने जब सिसकने की आवाज सुनी, मेरे सरकार जल्दी जल्दी गए, दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी, ए रोने वाले, क्या अंदर आ सकता हूं? भर्राई हुई आवाज, सिसकती हुई आवाज से एक आवाज आई कि हाँ दरवाजा खुला है, अंदर आ जाए। बात समझ में आ रही है? और थोड़ा आसान कर दूं, समझ में आ रही है तो बोले सुभान अल्लाह। दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाएं। मेरे सरकार अंदर तशरीफ ले गए। क्या देखा? रंगत काली है, होंठ मोटे हैं, काली शक्ल का एक इंसान जो अपनी चादर को अपने सर पर बांधे हुए बहुत अपने जिस्म को झटक रहा है, अपने जिस्म को कपकपा रहा है। मेरे नबी ने अपने मुबारक हाथों को जब उसके हाथों पर लगाया, सरकार ने फरमाया तेरे तो बुखार बहुत तेज है। मेरे सरकार ने पूछा ये बता क्या नाम है तेरा? वो कहते हैं कि हुजूर मुझे बिलाल कहते हैं, बिलाल। सरकार से उन बिलाल ने पूछा आपका क्या नाम है? मेरे आका ने फरमाया सुनो बिलाल, तुम्हें काम से मतलब है या नाम से मतलब है? बिलाल तुम्हारे बुखार बहुत तेज है, बताओ रोते क्यों हो? कहते हैं कि क्या हाल बे मेरा हाल पूछने वाले, मैं अपना हाल क्या बयान करूं? ऐ मेरा हाल पूछने वाले, रोते तो वो नहीं है जिनका हाल कोई पूछने वाला होता है, जिनकी कोई मदद करने वाला होता है, जिनका कोई सहारा होता है वो सहारों को पुकार लेते हैं, जिनका कोई यार होता है वो यारों को पुकार लेते हैं, जिनका कोई मददगार होता है वो मददगारों को पुकार लेते हैं। सुनो सुनो, हजरत बिलाल कहते हैं ना मेरा कोई भाई है, ना मेरा कोई दोस्त है, ना मैं कोई मेरा यार है, मेरा जो मालिक है वो उमैया बिन खल्फ है, जो बहुत बड़ा दज्जाल है, जो बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा पुस्तल है, जो बहुत बड़ा मगरूर है। सुने मेरा हाल पूछने वाले, उसने मुझे ये जौ दिया है पीसने के लिए, हसबे दस्तूर वो मुझे रोज देता है, काम कराता है, मैं उसका गुलाम हूँ। आज मेरे बुखार इतनी तेज है कि मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं जो मैं जौ पीसूं, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं जो मैं चक्की चलाऊं। ऐ मेरा हाल देखने वाले, तूने देखा ना मेरे बुखार कितनी तेज है, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि शाम तक ये काम करके भी देना है, लेकिन तबीयत ये कहती है, मिजाज ये कहता है कि अगर हाथ उठाता हूँ तो दर्द होती है, पैर बढ़ाता हूँ तो दर्द होती है, बता तो सही मैं काम कैसे करूंगा? अगर मैंने काम न किया तो शाम को मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा, इसलिए मैं जब सोचता हूँ तो रोने लगता हूँ, जब सोचता हूँ तो घबरा जाता हूँ। अरे बिलाल, शायद आपको पता न था, आप अपनी कहानी उसे सुना रहे हैं जिसने सारे कायनात की बख्शिश करानी है, आप अपनी कहानी उसे सुना रहे हैं जो सारे नबियों का भी नबी है, सारे नबियों का नबी है। आप अपनी कहानी उसे बता रहे हैं, उसे सुना रहे हैं जिसके लिए बरेली के ताजदार ने कहा था अल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी न फिर चाहे दुल्हन फूल। आप अपनी कहानी उसे सुना रहे हैं जिसके लिए बरेली के ताजदार फरमाते हैं हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। सुनो सुनो मोहतरम, हजरत बिलाल हबशी अपनी कहानी सुना रहे हैं। मेरे सरकार ने जब बिलाल की दास्तां को सुना तो मेरे सरकार की आंखें अश्कबार हो गई, सरकार की आंखें अश्कबार हो गई। लोगों, है किसी का नबी ऐसा जो उम्मत का गम सुने और आंखें अश्कबार हो जाए? सरकार ने फरमाया बिलाल देख, तू काम के लिए बिल्कुल न परेशान हो, आज तू आराम कर ले, मैं तेरा काम किए दे रहा हूं, मैं तेरे हिस्से का काम किए दे रहा हूं। सरकार ने जो उठाए अपने मुबारक हाथों से, पूरा वाकया बयान नहीं करूंगा आपके सामने मोहतरम, सिर्फ बताने का मकसद ये है, आओ आमिना के लाल का मर्तबा देखो, आओ जिस नबी की अजमत को समाप्त करने के लिए, जिस नबी के जिक्र मुबारक को सुनने के लिए हम और आप हाजिर हुए हैं। देखो तो सही वो नबी अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करता है, वो नबी अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करता है। सुने, सरकार ने फरमाया तुम लेट जाओ। मेरे सरकार ने जो उठाए और चक्की चलाई, आटा तैयार किया। सरकार ने कहा बिलाल काम हो गया है, अगर बुखार न उतरे तो काम न करना, कल फिर आ जाऊंगा, फिर से काम करूंगा। बोले सुभान अल्लाह, फिर से आ जाऊंगा। बिलाल जाने लगे। हजरत बिलाल ने देखा कि मेरे सरकार तशरीफ लिए जा रहे हैं, सरकार जाने लगे तो बिलाल ने मचल कर दामन पकड़ लिया। है मेरा हाल पूछने वाले, अरे मुझ पर एहसान करने वाले, मक्का तो वो है जहां कोई किसी का हाल नहीं पूछता,
शहर मक्का तो वो है जो कोई किसी के साथ हमदर्दी नहीं करता। मक्का शहर ऐसा है जहाँ पर कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे हाल में, ऐसे माहौल में मुझ पर एहसान करने वाले, मुझ पर कर्म करने वाले, अपना नाम तो बताता जा, अपना नाम तो बताता जा। सरकार फरमाते हैं बिलाल तुम आराम करो, मैं कल फिर आऊंगा, तुम्हारे हिस्से का काम फिर करके जाऊंगा। दूसरा दिन हुआ, वादे के मुताबिक मेरे सरकार फिर दूसरे दिन तशरीफ लाए, बिलाल को लिटाया, बिलाल आराम करो तुम्हारा काम मैं किए जरूर। तीसरे दिन सरकार आए और जब दूसरे दिन जाने लगे ना तो बिलाल ने नाम पूछा। मेरे सरकार कहते हैं कल फिर आऊंगा, तुझे नाम भी बताऊंगा, तेरे हिस्से का काम भी करूंगा। तीसरा दिन हुआ, जब सरकार जाने लगे बिलाल ने दामन पकड़ लिया, या रसूलुल्लाह आपने कहा था नाम बताऊंगा, बताएं तो सही आपका नाम क्या है। आका फरमाते हैं सुन बिलाल, मुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं, मुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं। सभी ने कहे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिलाल ने जब नाम सुना तो कहते हैं या रसूलल्लाह चर्चे बहुत सुने थे, जियारत भी कर ली है। मेरे सरकार अब जाने से पहले बिलाल को जो है बिलाल के जिस्म को उमैया के हवाले कर दे, बिलाल की रूह और नफ्स को रब के हवाले करते जाए। सरकार जाने से पहले इस गुलाम को कलमा पढ़ाते चले जाए। और जब बिलाल ने इजहारे ख्याल किया, मेरे सरकार ने कहा बिलाल अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत बिलाल हबशी ने कलमा पढ़ा। अब कलमा पढ़ा तो सरकार का कलमा पढ़ने के बाद मेरे नबी के सीने मुबारक से लगे बिलाल ज़ारो कतार रोने लगे। जब बिलाल रो रहे सरकार फरमाते बिलाल क्यों रोते हो, बिलाल मत रो। बिलाल कहते या रसूलल्लाह आज तक मुझे किसी ने अपने सीने से नहीं लगाया है, या रसूलल्लाह आज तक मुझे इतनी मोहब्बत किसी ने नहीं दी है। मेरे आका मेरा दिल ये कहता है आपके सीने से लगा हूं, रब्बे काबा मेरी मौत दे दे, मैं यहां भी कामयाब हो जाऊंगा, वहां भी कामयाब हो। सरकार फरमाते हैं बिलाल रोने की कोई जरूरत नहीं, जो मोहम्मद का गुलाम होता है वो दुनिया का इमाम होता है, उसे रोने की जरूरत नहीं। बिलाल मत रो, बिलाल अब खजा का दौर चला गया। बिलाल तुमने आमिना के लाल को अपना महबूब बना लिया है, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। सरकार जाने लगे। जाते हुए मेरे सरकार ने, वाकया बहुत बड़ा है, बस आ जाएं 1 मिनट के लिए इधर। सरकार जाने से पहले मेरे आका ने फरमाया बिलाल तुम उमैया बिन खल्फ के गुलाम हो, जो बहुत बड़ा जालिम व जाबिर है। ऐसा करना, मक्के के अंदर अभी मुसलमानों की कमी है, अभी कम तादाद है हमारी। बिलाल अपने कलमे का इजहार मत करना, तुमने कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने का इजहार मत करना। हजरत बिलाल कहते या रसूलल्लाह कोशिश करूंगा, कलमे का इजहार नहीं करूंगा। मोहतरम मुख्तसर में आपको ये बता दूं, बिलाल ने जिस दिन से कलमा पढ़ लिया बिलाल के चलने का भी ढंग बदल गया, बोलने का भी ढंग बदल गया। और जब चारागाह में बकरियां चराने जाते थे बिलाल कभी मेरे रब के नाम को बुलंद करते थे, कभी उसके मुस्तफा के नाम को बुलंद करते थे, कभी जिक्र मुस्तफा में झूम कर या रसूलुल्लाह के नारे लगाते थे। एक खादिम ने सुनकर उमैया बिन खल्फ के कान में कहा सुनो गुलाम तुम्हारा है, जिक्र तो आमिना के लाल का कर रहा है, नौकर तुम्हारा है, तज़किरा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कर रहा है। उमैया बिन खल्फ बड़े गुस्से में आया, बिलाल के बालों को पकड़ा, कहा बिलाल मैंने सुना है तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, मैंने सुना है तुम्हारे सीने में मुस्तफा का इश्क मौजूद है। बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दो नहीं तो फिर रूह निकाल जाएगी। बिलाल मुस्तफा का कलमा पढ़ना छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे जिस्म से लहू का एक एक कतरा खींच लूंगा। बिलाल ने कहा सीना तान कर उमैया सुन, मेरे जिस्म पर तेरी हुकूमत है, मेरे दिल पर मोहम्मद अरबी की हुकूमत हो गई है। अब ये दिल जब चलता है तो मुस्तफा का गुलाम बनकर चलता है। सुनो उमैया, ये दिल ये जो है ना जिस्म ये तेरे हवाले है, मेरी रूह मेरा दिल मुस्तफा जाने रहमत के हवाले है। फिर वो जुल्म किया गया, वो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हजरत बिलाल पर, जिस्म जलाया गया, इतना जलाया गया कि जिस्म की चर्बी पिघल कर अंगारों पे पड़ती थी, अंगारे बुझ जाया करते थे। बिलाल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जब मुलाकात हुई, बिलाल से पूछा है बिलाल जब मेरे आका ने मना किया था तो तूने अपना
कलमा क्यों पढ़ा था? बिलाल तूने क्यों पढ़ा था? बिलाल कहते हैं कि जुल्फ देखी है न नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। ऐ मेरे भाई अबू बकर, मोहम्मद का इश्क दिल में हो, छिप जाए ऐसा हो नहीं सकता है। जो मोहम्मद का गुलाम होता है वो दुनिया से कभी डरता नहीं है। वो हमारा आका, वो मदीने वाले मुस्तफा, उनकी महफिल में हम और आप तशरीफ फरमाए, उनकी महफिल में हम और आप हाजिर हैं। मोहतरम, बहुत मुबारकबाद के लायक हैं हम और आप कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो जिंदगी अता फरमाई वो मुस्तफा के वफादारों में शामिल फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत के वफादारों की फहरिस्त में हमारा नाम दर्ज फरमाया। आज हम और आप जिक्र मुस्तफा सुन रहे हैं, जिक्र मुस्तफा पढ़ रहे हैं, ये भी अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ते हैं उनसे मोहब्बत करने वाले हजरात। जहां भी जिक्र मुस्तफा की शमा जलती है, उनके आशिक तमाम जो है, तमाम दुनिया और आखिरत की तमाम नेकियां और भलाइयों के लिए मुस्तफा जाने रहमत के इश्क की जो मशाल होती है उसकी गर्माहट में पहुंच जाया करते हैं। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर बात होगी, फिर इंशाल्लाह सलातो व सलाम हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातो व सलाम। मैंने अपनी बात मोहब्बत के साथ कहे या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह का नारा लगाया करें यार। या रसूलल्लाह का नारा जो लगाता है वो दुनिया में कामयाब हो जाता है, आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। या रसूलल्लाह के नारे से मोहब्बत किया करें, इसलिए कि या रसूलल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। बड़ी खामोशी के साथ सुन रहा है, इससे लग रहा है कि पड़ोसी सुन लेगा तो कहीं कोई फतवा ना लगा। इतनी खामोशी के साथ नारा भी चुप पे लगा लेना चाहते हो क्या? हालात देख रहे हैं कहां से कहां जा रहे हैं। बेदार हो जाएं, बेदार हो जाएं। दुनिया जो कहानी लिखती है वो जबानों की कहानी लिखी जाती है। दुनिया ने कभी किसी गूंगे की कहानी को नहीं लिखा है, दुनिया ने कभी किसी सुस्त इंसान की कहानी को नहीं लिखा है। ऐ लोगों, हम तो वो थे, हम तो वो थे, हम तो वो थे खालिद बिन वलीद जैसे लोगों को मानने वाले। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आला गुलाम के अदना गुलाम थे। वो आला गुलाम जो थे ना, उनके अदना गुलाम थे। हम तो अब जिस तरफ रुख कर लिया करते थे, मौजों को मोड़ दिया करते थे। हम तो वो थे कि जो है दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम तो वो कौम है जहाँ कदम रख देते थे लोग पीछे हट जाया करते थे। आज हालात हमने अपने बस से बदतर कर लिए हैं कि हम जब बोलते हैं तो लोग कहते हैं तुम नहीं, कोई दूसरा बोलेगा तो हम मानेंगे। यही वजह है कि हमने बोलना छोड़ दिया है। आइए एक दो बात जो मौके की मुनासिबत पर बयान कर दी जाए कि माँ बाप जिनके लिए आज जो मरहूमीन हैं उनके बच्चों ने मिलकर अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए, अपने वालिदैन के एहसाले सवाब के लिए जो ये महफिल सजाई है, हर वफादार बेटे को ये चाहिए कि अपने मोहसिनीन की कामों को, अपने मोहसिनीन को हमेशा याद रखें। उनका जिक्र हर गोशे में, हर बस्ती में करना चाहिए। अपने गांव की मस्जिद में, अपने गांव के मदारिस में, इन उलमाए कराम की बारगाह में जब भी जाएं, अपने लिए बाद में अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त पहले करें। क्योंकि ये उलमाए कराम जब दुआ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी रद्द नहीं फरमाता। इन लोगों ने, इन हज़रात ने अपने वालिदैन की साले सवाब के लिए महफिल। ऐ लोगों, हमारे माँ बाप का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। न जाने दुनिया में कितने लोग ऐसे चले गए जिनका कोई जिक्र करने वाला नहीं, जिनका कोई जिक्र करने वाला नहीं। हम जब भी अपनों से बिछड़ जाएं, हमारे वालिदैन हमें छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं, हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस्म में जब तक जान रहेगा हम कोई न कोई नेक काम अपने माँ बाप के नाम पर करते रहेंगे, कोई न कोई ऐसा ले सवाब का काम करते रहेंगे ताकि कब्र में भी और हश्र में भी हमारे वालिदैन का
यहां जो हम साले सवाब करेंगे वो उन्हें वहां मिलता रहे। हर वफादार बेटे की हुकूकुल इबाद, जिसकी बात मैंने आपसे शुरू किया था, बंदों का बंदों के ऊपर हक, एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर हक। जब इंसानों की बात की जाए, हुकूकुल इबाद की बात की जाए, उनमें सबसे पहला अव्वल दर्जे का अगर कोई हक के लायक है तो वो हमारा बाप है और हमारी माँ है, जो उनका हक हम पर जिस दिन से हम पैदा हुए तब से लेकर हमारी जो है आखिरी सांस तक, जब तक दुनिया में भी रहेंगे तब तक हमारे माँ बाप का हम पर एहसान रहेगा। माँ बाप अपने बच्चे की कामयाबी के लिए लोगों क्या कुछ नहीं करते। बाप दूसरों के घर में मजदूरी करता है बेटा कामयाब हो जाए, माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती है ताकि बेटा कामयाब हो जाए। जब बच्चा बीमार होता है माँ बाप खाना नहीं खाते ताकि बच्चा का भी अच्छा हो जाए। बच्चा अगर परेशान है तो माँ बाप पहले परेशान हो जाएंगे। मोहतरम सामईन, अपने माँ बाप से ऐसी मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से ऐसी मोहब्बत करो कि तुम्हारे माँ बाप की मोहब्बत को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे। कि जो बेटा अपने माँ बाप का वफादार होता है वो अल्लाह का भी महबूब होता है, रसूलुल्लाह का भी महबूब होता है, रसूलुल्लाह का भी महबूब होता है। लोगों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ सिर्फ 6 साल की है। 6 साल की उम्र शरीफ, 6 साल की उम्र शरीफ जब हुई तो आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली को पकड़कर आपके दादा जान की बारगाह में ले गई और कहा, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के दादा जान, हम ये चाहते हैं कि अब मोहम्मद अरबी की उम्र शरीफ 6 साल की हो गई है, इन्हें इनके वालिद के मज़ार मुबारका की जियारत करा दी। बात समझ में आ रही है? इन्हें इनके वालिद मोहतरम के कब्र अनवर की जियारत करा दी जाए। आपके दादा ने इजाजत दे दी। अब हजरत उम्मे ऐमन है, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा है, साथ में 6 साल की उम्र शरीफ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उंगली पकड़ा, सफर तय किया, रोज़े वालिद पर पहुंचे। मेरे सरकार, मेरे नबी ने अपने वालिद मोहतरम की कब्र अनवर को देखा तो अश्कुफार हो गए। सलाम पेश किया, कहा, वालिद मोहतरम देख, तेरा बेटा तुझसे मिलने के लिए आया है। ऐ लोगों, हमारे वालिदैन जब इस दुनिया से जाए तो हमें ये चाहिए कि हम उनकी कब्र पर जाया करें। उनकी कब्र पर जाकर अल्लाह के कलाम की जो भी मुक़द्दस आयतें हमने सीखी हैं वो उन्हें पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करके कहना चाहिए, मालिक ये वो हैं जिनकी खुशी हमारी खुशियों में थी, मालिक इनका चैन हमारे चैन में था, मालिक इनकी बहारें हमारी बहार में थी, मालिक इनकी खुशियां हमारी खुशियों में थी। परवरदिगार हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ लोगों, यहाँ तुम्हारे माँ बाप राजी होंगे, वहां मदीने में मुस्तफा राजी हो जाएंगे, मदीने वाले आका राजी हो जाएंगे। सुनो, 6 साल की उम्र शरीफ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे अपने वालिद मोहतरम की कब्र पर, सलाम पेश किया, अर्ज की, वालिद मोहतरम देख, तेरा बेटा आया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक बात की अपने वालिद मोहतरम से। मज़ार मुबारका पर जब जियारत कर ली और फातिहा पढ़ ली, पढ़ने के बाद जब सरकार चलने लगे, रुखसत होने लगे, रास्ता में आपकी वालिदा मोहतरमा जो थी वो एकदम अचानक बीमार हो गई, और बीमार इतना हो गई कि ऊंटनी पर बैठा नहीं जा रहा, ऊंटनी पर बैठा नहीं जा रहा। हजरत सैयदा आमिना अपनी ऊंटनी से नीचे गिरी। रेगिस्तान की वो जगह है, गरम जलती हुई जमीन है। सैयदा फातिमा हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब जमीन पर गिरी, आवाज दिए, मेरे लख्ते जिगर, आ मेरे बेटा मेरी तरफ आ जा। सरकार हजरत उम्मे ऐमन के साथ में थे क्योंकि 2-4 कदम आगे थे, आपकी अम्मी की ऊँटनी पीछे थी। आप जब जमीन पर गिरी, आवाज दी, मोहम्मद अरबी इधर आओ। मेरे सरकार ने पलट कर देखा तो दौड़ कर गए, अम्मी के सीने से लग गए। ए लोगों, अपनी माँ से मोहब्बत किया करो, अपने बाप से मोहब्बत किया करो, इसलिए कि वो माँ बाप होते हैं। बेटा अगर तकलीफ में है, तकलीफ जान जाए बूढ़े माँ बाप, बेटा तकलीफ में आराम पा जाएगा तो सो जाएगा, लेकिन पूरी रात माँ नहीं सोएगी।
पूरी रात बाप नहीं सोएगा, इसलिए कि आज मेरे बेटे को तकलीफ है, आज मेरे बेटे ने न जाने खाना खाया हो कि न खाया हो। न लगा कि सुन्नी सगलमीदा मोमिनो, अगर आपके बच्चे कभी परदेश में है ना, परदेश में ईमान से बताइएगा, माँ बाप वो अनमोल दौलत होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं, बेटा हजारों मील दूर हो, माँ बाप जब भी निवाला उठाते हैं, लुकमा मुंह में बाद में जाता है, बेटों की बच्चों की याद पहले आ जाया करती है। माँ बाप की शख्सियत ये है। मेरे सरकार की अम्मी ने जब आवाज दी, सरकार दौड़ कर गए, अम्मी जान के सीने से लग गए। मेरे सरकार ने कहा, अम्मी आप ऊँटनी से नीचे कैसी आई? कहा है मेरे बेटे मोहम्मद बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सरकार बैठ गए अम्मी की गोद में। अम्मी की गोद में, माँ की गोद वो है जो इंसान माँ की गोद में होता है तो लगता है वो अर्श आज़म पर बैठा है, बाप के कांधे पर होता है तो लगता है कि दुनिया की तमाम ऊंचाइयों को हमने छू लिया है। माँ बाप की मोहब्बत होती है। सरकार बैठ गए। सरकार की अम्मी ने कहा, बेटे मोहम्मद सुनो, हर नए को पुराना होना है बेटा, हर उरूज को, हर बुलंद को पस्ता होना है, हर नए को पुराना होना है। मोहम्मद अरबी, मुझे ऐसा लगता है बेटा कि आज तक ही हमारा साथ था, अब हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो पाएगा बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। जब सरकार ने अपनी अम्मी की ये बातें सुनी तो गोद में बैठे थे, अम्मी की बाहों में बाहें डाली, सरकार रोने लगे। अम्मी आप देखें तो सही, मैं जब दुनिया में आया तो बाप का साया सर पे न था। अम्मी जान आप भी छोड़कर चली जाएंगी, बताएं तो सही ये बच्चा किसके सहारे जिएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात जब माँ ने सुनी तो कहा, बेटा मोहम्मद अरबी, मैं तुझे अपने परवरदिगार के भरोसे उसके सहारे छोड़कर जाऊं। सरकार की आंखों में आंसू है। अम्मी ने कहा, बेटे परेशान मत होना। अम्मी सरकार की ये रोने लगी, कहती है मोहम्मद अरबी सुनो, मैं तो चली जाऊंगी लेकिन दुनिया मेरा नाम नहीं भूला पाएगी, मैं तो चली जाऊंगी मेरा नाम जिंदा रहेगा, मैं तो चली जाऊंगी मेरे चर्चे होते रहेंगे। इसलिए बेटा तेरे जैसा बेटा जिसके हो, जिसने तेरे जैसा लाल पैदा किया हो, वो तो चले जाएंगे, उनका नाम जिंदा रहेगा, वो तो चले जाएंगे, उनका जिक्र जिंदा रहेगा। ऐ मोहम्मद अरबी, तेरी जो शान है ना, तेरी अम्मी के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता है तो तेरी अम्मी जानती। बेटा ये मक्के वाले तुझे नहीं मानेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ अल्लाह ने तुझे कितने एजाज बख्शे हैं, अल्लाह ने तुझे कितना मर्तबा बुलंद फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात हो रही है, एक बेटे की माँ से, एक माँ की बेटे से बात हो रही है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिस्कियां बन गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद मोहतरमा अचानक अपने जिस्म को हरकत दी और आपके जिस्म मुबारका से रूह निकल गई। और जब सरकार ने देखा, सीने से लगी अम्मी अम्मी, माँ माँ की आवाजें बुलंद करने लगे। हजरत उम्मे अमन देख रही थी, पता थी कि सरकार की अम्मी विसाल कर गई है, सरकार की अम्मी का इंतकाल हो गया है। सुनो, हजरत उम्मे अमन दौड़ी, सरकार को सीने से लगाया। ऐ नौजवानों, हमारे माँ बाप दुनिया से जाते हैं तो कहीं भाई दिलासा देने वाला होता है, कभी फूफी सीने से लगा लेती है, कभी चाचा सीने से लगा लेता है, कभी गाँव के लोग हमें सीने से लगा लेते हैं, कोई हमारा हाल पूछता है, कोई कुछ पूछता है। देखो बयाबान रास्ता है जहाँ सरकार की अम्मी छोड़कर चली गई, लेकिन सरकार को देखने वाला कोई नहीं है, सरकार को सीने से लगाने वाला कोई नहीं है, मेरे नबी को दिलासा देने वाला कोई नहीं है। हजरत उम्मे अमन आगे बढ़ी, सरकार को पकड़ा, सीने से लगाया, कहा है मोहम्मद अरबी बेटा, अपने माँ बाप की वालिदा की तदफीन का इंतजाम करो, ऐसा करो यहीं पर इनकी तदफीन कर दी जाए। बेटा रो नहीं मेरे लाल, रो नहीं, मैं तुझे सहारा दूंगी बेटा, मैं तुझे भरोसा देती हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगी। सुनो सुनो मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से, छोटे छोटे हाथों से पत्थर हटाया, जमीन को खोदा, अम्मी के लाश मुबारका को सहारा देकर उम्मे अमन के साथ तदफीन कर दिया। और जब सरकार ने अपनी अम्मी जान की कब्र अनवर को बनाया, बालू पर बढ़ाई, बढ़ाने के बाद जब सब काम हो गए, सरकार अपनी माँ की कब्र पर खड़े, सर झुकाए, आंखें अश्कबार हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अम्मी जान अब बता ये मोहम्मद किसको माँ कह के पुकारेगा? अम्मी जान मैं किसे माँ कह कर पुकारूंगा? इतनी बात उम्मे अमन ने सुनी, दौड़ कर आई, सीने से लगाया, मेरे लाल परेशान ना हो, मैं हूं ना तुझे अपने सीने से लगाने के लिए। और हजरत उम्मे अमन ने जब बहुत समझाया, सरकार की उंगली पकड़ी, बेटा मोहम्मद चलो चलते हैं मक्का शरीफ।
सरकार अभी कुछ कदम आगे बढ़े थे कि हजरत उम्मे यमन का हाथ झटक दिया और झटकने के बाद सरकार फिर से वापस दौड़कर अपनी माँ की कब्र पे आके यूं लेट जाते हैं और लेटने के बाद फिर अम्मी जान पुकारने लगते हैं। ऐ लोगों, जब कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ता है, जब किसी की माँ अपने बच्चे को छोड़कर जाती है, माँ तो वो होती है, माँ वो होती है। अगर हम मर जाएं तो इन्हें दुआ नहीं दे सकते, आप मर जाएं अपने बच्चों को दुआ नहीं दे सकते, लेकिन सुनो, माँ वो चीज होती है, माँ मर जाती है तो कब्र से अपने बच्चों के लिए दुआएं आप माँ अपने बच्चों के लिए दुआएं खैर दुआएं आफियत किया करती है। माँ कब्र से भी हमें याद रखती है। माँ की मोहब्बत, माँ की ममता ऐसी चीज होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये समझ अता करे, अगर माँ बाप जिंदा है लोगों उनके पैर दबाया करो, उनकी मोहब्बत है, अल्लाह की रजा है। सुनो सुनो, उलमाए किराम फरमाते हैं वो इंसान बड़ा बदनसीब है, वो इंसान बड़ा कम नसीब है जिसके माँ बाप जिंदा हों और वो किसी पीर से कहे कि आप मेरे लिए दुआ कर। हजरत वो किसी पीर से कहे मेरे लिए दुआ कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक तुम जिंदा हो, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, अगर परेशानी में मुब्तला हो गए हो, मुसीबत ज़दा हो, कारोबार नहीं चलता, परेशानियों ने घेर रखा है, कुछ न करना, अपनी माँ के पैतियानी जाने बैठना, माँ के पैर दबाते रहना, कहना अम्मी मेरे लिए दुआ कर दे। बाप के हाथ को चूम कर उसके कांधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे दबा कर कहना वाले मोहतरम हमारे लिए दुआ कर दे। सुनो, माँ बाप वो होते हैं जो बच्चों के लिए दुआ करते हैं, वो डायरेक्ट अर्श आज़म तक दुआ जाती है। इधर दुआ के लिए हाथ उठते हैं, उधर अल्लाह तबारक व तआला बच्चों की परेशानियों को दूर करते हैं। माँ बाप के रजा ही में रब की रजा है। इसलिए मोहतरम ये बच्चे बड़े खुशनसीब हैं कि इन्होंने, देखिए हर किसी को एक न एक दिन जाना है। आज आप, कल आज हम, कल आप, हर किसी को जाना है, लेकिन अपने पीछे इतना असासा छोड़कर जाएं, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का भरोसा छोड़कर जाएं कि हम मर जाएंगे, हमारी औलाद इंशाअल्लाह जिक्र मुस्तफा की महफिल की शक्ल में हमें सवाब अता करेगी, सवाब का एक जरिया बनाएगी। इन मुकद्दस, इन मोतबर उलमाए किराम को बुलाएंगे और जब ये उलमाए किराम अपने हाथों को उठाकर कहेंगे मौला मुस्तफा के मिलाद के सदक़े में इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। सुनो, मुस्तफा का वास्ता लग जाए, अल्लाह फौरन दुआएं कबूल फरमा लिया करता है। तो इसलिए माँ बाप अनमोल नेमत है, वक्त दामनगीर है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी आपसे बात करूंगा। मुझसे कुछ फरमाइश की गई थी, वो इंशाअल्लाह जिंदगी ने अगर फिर से वफा की तो आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि 10:30 बज गया, जिहाद के एतबार से ये वक्त बहुत होता। मेरे बाद भी कुछ हजरात होंगे पढ़ने के लिए। मैं बस एक बात कहकर आपसे रुखसत होता हूँ कि लोगों, कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी आ जाए, किसी के लिए अपने माँ बाप से बगावत मत करिएगा। किसी के लिए, किसी से रिश्ता जोड़ने के लिए माँ बाप से रिश्ता मत तोड़िएगा। इसलिए कि माँ बाप से ज्यादा दुनिया में, माँ बाप से ज्यादा हमसे मोहब्बत कोई नहीं करता, कोई मोहब्बत नहीं करता। जहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके माँ बाप चले गए और उम्र है 50 साल की, लेकिन माँ बाप बहुत पहले गुजर गए। मैं दावे से कहता हूँ, जब भी कोई खुशी या गम का मौका आता है तो इन 50 साल के बुजुर्गों को भी अपने माँ बाप की याद आती है, इन्हें भी अपने माँ बाप की याद आती होगी, इन्हें भी अपने माँ बाप का दुख दर्द इनके दिलों पर बिजली बनकर गिरता होगा। क्योंकि माँ बाप ऐसी चीज है, जब तक जिंदा होते हैं बच्चों की कामयाबी के लिए अपनी जिंदगी को बसर कर दिया करते हैं। बच्चे कामयाब हो जाए इसलिए वो हर कुछ करने के लिए तैयार होते हैं जो जायज होता है अपने बच्चों की कामयाबी के लिए। ऐ लोगों, अगर चाहते हो रब राजी हो जाए, अगर चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए, माँ बाप को राजी कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं तो अल्लाह भी राजी है, मुस्तफा भी राजी है। माँ बाप को राजी कर लो। यही बात कहकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम मेरे बोलने में अगर कोई किसी किस्म की कोई कमी, कोई खामी लफ्ज़न या किसी तरह से रह गई है, कोई गुंजाइश रह गई है, परवरदिगार आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मिलाद की बरकत से उसे माफ फरमाए। तौबा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।